हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपके। जो मैंने अभी बोला था कि फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जिक्र किया था। उससे पहले हमने कुछ वीडियोस में बेटा हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये किए थे। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। लेट वी स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स। आई अज्यूम दैट और आई होप that you have understand all the topics what we have done in the previous lectures. If you have not completed this theoretical portion, then beta before this lecture you have to complete or you have to clear all the lectures of theoretical portion in the vector. If you have not completed your theoretical portion, then you can face many difficulties to understand the numericals on the basis of vector. And vector is a very important topic because you will face this topic in the mathematics also and in the competition exams. So it is very important topic. Understand the theoretical portion basically. After that complete and try to solve the numericals portion. Clear? Let's we start the numerical portion. And first numerical, I am writing the statement on the board. You can write also two equal vectors have their resultant equal to either at what angle they are inclined. At what angle they are inclined. Very simple question it is. Very simple question. And such type of questions we have completed with the theoretical portion. So let me start that. Two equal vectors have their resultant equal to either. Let me have two forces. F1 is equal to F and F2 is equal to F and their resultant also equal to F according to question. Equal to either means their resultant is equal to the magnitude of one force and both forces have the same magnitude F and F. Done. And now we have to find the angle between these two. What is the result? We know from the triangular law of vector addition and parallelogram law of vector addition, the resultant is same now, and that resultant is R is equal to under the root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of theta. So what is the value of R? F. Under the root of, what is the value of F1? F square plus F square plus 2F square cos of theta. Because F into F square, 2A as it is and cos theta as it is. Done. So F square plus F square, this is 2F square. F is equal to under the root of 2F square plus 2F square cos of theta. So this equation can be written as, if we want to cancel out this root, what we have to complete it there over there? We take the step squaring both sides. If we squaring both sides, then this square root cancel out, and here on the left hand side what you got? F square, 2F square plus 2F square cos theta. 2F square plus 2F square cos theta. F square is equal to, from right hand side we can take the 2F square as a common. 2F square is common. 1 plus cos theta is left over the bracket. Clear hogi? 2F square into 1 plus cos theta. So you can cancel out F square to F square, and these two can becomes over there. You find that here it is left half, 1 by 2. Here it is left half, and on the right hand side 1 plus cos theta. So you can find easily the value of this 1 by 2 minus 1, or you got minus 1 by 2.
cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, देन द वैल्यू ऑफ एंगल, कितने एंगल पे cos थीटा -1/2 होता है? थीटा ऑफ 120 डिग्री पे, थीटा ऑफ 120 डिग्री पे cos थीटा 1/2 60 पे और -1/2 120 पे होता है बेटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्लियर बेटा? डन। So you can understand this numerical as like that. Now we will move on the next topic. Next numerical. Two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle be of their inclination, if the angle of their inclination means there is the angle between them is 60 degree. Find the magnitude of each. Find the magnitude of each. दोनों का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना बेटा। देखिए, two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 gives a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, then we have to find the magnitude of each. दोनों forces का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो let we have the first force F1 is equal to 3x मान लेते हैं और F2 इज इक्वल टू 5x मान लेते हैं, क्योंकि इनकी रेशियो आपको क्या आनी चाहिए? 3:5। तो इफ वी हैव फर्स्ट फोर्स इज 3x एंड सेकंड फोर्स इज 5x, देन वी कैन इजीली फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू इज 3:5 ना? यस, यू गॉट दैट, 3:5, and their resultant is given 28 Newton, and also the theta between these two vectors is 60 degree. These all values are given. Now we have to find F1 and F2. Simple it is. We know that R square is equal to, I is equal to under the root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos of 60. So write the values all. R is 28. Yes. F1 की वैल्यू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस F2 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 into 3x into 5x into 1/2. cos 60 क्या होता है बेटा? 1/2. cos 60 1/2, so 2 से 2 cancel out. What you got under the root term? 9x square and 25x square. How much you got? 9 and 25, 34. Plus 5 3s are 15 x square. Or this will you got 34 and 15 49x square. 49x square का रूट हटाओगे तो बेटा अपने आप ही 7x बच गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया? 7x is equal to 28 and you got x is equal to 28 over 7. 7 4 जा. Use this value of x here. 3 into x 12 Newton first. 4 into 5 20 Newton. These are your answer. 12 Newton and 20 Newton. You can find the solution of this question like that. Clear? तो बेटा देखो, मैंने दो क्वेश्चंस करवाए, दोनों में उल्टे चले। एक में तो थीटा पूछा है और एक में मैग्नीट्यूड पूछा है। तो दोनों के प्रोसेस आपने अच्छे से समझने हैं, अच्छे से आप फिर असाइनमेंट कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
determine a unit vector. Very important question it is. This type of numericals can be asked in the competition exams. Determine a unit vector which is perpendicular to both a 2i cap plus j cap plus k cap and b vector is equal to I cap minus j cap प्लस 2। इस टाइप का अगर बेटा कोई क्वेश्चन आ जाता है, इफ यू फेस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू फेस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, then how can you solve this question? Determine a unit vector which is perpendicular to vector a and b। अब आपको कुछ ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो और b के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो। तो पहला स्टेप, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो बेटा a और b का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। a क्रॉस b करना है। क्या करना है? a क्रॉस b, b क्रॉस a नहीं, a क्रॉस b करना है। a क्रॉस b कर लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। उसका फिर क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। बस काम खत्म। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको निकालना मैंने सिखाया है अच्छे से। क्या करोगे? पहला स्टेप आप दो लाइन ड्रॉ कर लोगे, फिर आई कैप माइनस जे कैप के कैप लिख लेंगे, फिर ए का कोफिशिएंट लिखो a 1 1, ये 2 था। यहाँ पे भाई b के कोफिशिएंट क्या है? 1 -1 है ये और +2। तो ए क्रॉस बी निकालो आप, बिल्कुल सिंपल है, आप निकाल सकते हो भाई। आई कैप इंटू ये कॉलम दबाया, ये रो दबाया, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू माइनस 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 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे +1 आ जाएगा। करके देखोगे जब आपका आएगा माइनस जे कैप इंटू इसको करो 2 2 जा 4 -1 1 जा 1 प्लस के कैप इंटू अभी ये क्या करना है? इसको दबाना है, इसको दबाना है, 2 -1 -2 और 1 1 जा 1 -1। So you can easily write 3i cap 3 -3 j cap and ये -3k cap। ये आपका आ जाएगा भाई 3i cap -3j cap -3k cap। ये आपका क्या आ गया? a क्रॉस b। अब मैं दूसरा स्टेप क्या करना था बेटा? जो ये a क्रॉस b आया ये वाला, इसका अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। कैन इजिली फाइंड यूनिट वेक्टर आपको निकालना बता रखा मैंने। अगर आपके पास कोई वेक्टर z है और z वेक्टर ये है 3i कैप -3j कैप -3k कैप, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों को पता है भाई, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9 + 9 रूट ऑफ 27। रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हो? 3√3। 9 मत कर देना। z का क्या आ जाएगा? ये मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हो भाई? यहाँ पे लिख देते हैं हम z का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू z होल वेक्टर बाई z का यूनिट मैग्नीट्यूड। फार्मूला याद कर लो बेटा, फॉर्मूला जो मैंने बता रखा उसी के बेस पे हम चलने वाले हैं सब कुछ। तो फॉर्मूला हमने ये लिख लिया। अब फॉर्मूला ये लिख लिया तो अब आप यहां से इसका क्या लिख सकते हो? यूनिट वेक्टर z यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू z वेक्टर पूरा क्या था? 3i कैप -3j कैप -3k कैप डिवाइड कर देंगे किससे? मैग्नीट्यूड से। क्या बच जाएगा? 3/3√3 i कैप -3/3√3 j कैप -3/3√3 k कैप। अब इसको सोल्व करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल रह गया। काटता है तो कटने दो, जो भी कट रहा है काटो। 3 से 3 3 से 3 3 से 3 क्या बच गया यहाँ पे? आई कैप √3 -j कैप √3 और -k कैप। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर।
तो इस तरीके का क्वेश्चन बेटा आप जरूर जरूर पढ़ लो, ये जरूर जरूर सीख लेना कि कैसे हम एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं जो कि गिवन टू वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। गिवन टू वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर होगी ये बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं भाई सारे। जब भी आप कोई भी बुक कंसल्ट करोगे प्रदीप से, चाहे आपकी एनसीईआरटी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वेक्टर के कुछ इसी टाइप के उठने वाले हैं, वेक्टर्स के कुछ इसी टाइप के उठने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, ये b है भाई यहाँ पे, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, पैरेलल टू ईच अदर भी पूछा जा सकता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि शो कीजिए दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो बेटा अगर एंगल 0 हो, थीटा 0 हो, दो वेक्टर के बीच थीटा 0 हो तो क्या हो जाते हैं पैरेलल, और थीटा अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाते हैं परपेंडिकुलर। यही तो बात है। अगर थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 बन जाए तो हम क्या कहेंगे, बताओ वो क्या बने। अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 रख दूं, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, यानी कि एक क्रॉस भी क्या बन गई 0, और जब 0 बन गई तो वो क्या है पैरेलल। इसका मतलब जब आपसे पैरेलल पूछा जाए तो आपको ये प्रूफ कर देना है कि क्या a क्रॉस b 0 के बराबर आती है। अगर 0 के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, और अगर 0 के बराबर नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल नहीं है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है ना, cos 90 0 हो गया तो इसका मतलब a डॉट b 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर दो वेक्टर गिवन पैरेलल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। नोट कर लो बेटा ये कहीं को नोटबुक में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। If two vectors are parallel to each other, then we can say that the cross product of these two vectors is equal to 0. And if two vectors are perpendicular to each other, then we can say that the dot product of these two vectors is 0. तो dot product 0 कब होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगी, पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होंगे। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आपको क्लियर कर देना क्वेश्चन कि भाई ये दो वेक्टर जो गिवन है, ये दो वेक्टर कब आपके परपेंडिकुलर होंगे और कब आपके पैरेलल होंगे। तो इसने पैरेलल पूछा है, पैरेलल के लिए क्या बताया है मैंने, पैरेलल के लिए अभी बताया था, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। चलिए अब हम a क्रॉस b निकालते हैं। अगर a क्रॉस b 0 आ जाती है तो देखो हम कह देंगे भाई पैरेलल है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने दो लाइनें ड्रॉ करनी है। ऊपर क्या लिखना है, शाबाश, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप लिखना है। आई कैप a क्रॉस b निकालना तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 और 3। तो आई कैप a क्रॉस b हम निकाल रहे हैं, आई कैप इंटू ये करो छोटी कॉलम छोड़ो भाई, रो और कॉलम छोड़ दिया तो 3 3 माइनस 9, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 9, माइनस जे कैप इंटू ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का माइनस 6, प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 3 ये क्या था भाई यहाँ पे 9 है ना, 2 9 जा 18, माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस जो आप टर्म वाइज लगाते आ रहे हो वो माइनस,
तो देखो भाई 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 0 0, यानी कि 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो यानी कि ये क्या आ गया 0। तो 0 आ गया तो भाई आपका क्या कह देंगे हम, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर होगी बेटा बात। तो इस तरीके से पैरेलल आ जाओ चाहे परपेंडिकुलर आ जाओ, मेरे ख्याल में अब इन क्वेश्चंस को आप बख्शोगे नहीं। ठीक है बेटा, इतने न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप इतने न्यूमेरिकल्स करो और कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनके ऊपर करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।